اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی، لنکڈ ان اور ٹک ٹاک۔ آج رات گئے ہمیشہ کی طرح ہندو بنیے نے مودی نے شب خون مارنے کی ناکام کوشش کی، لیکن پاکستان کے جری جوان اور شاہین پہلے ہی تیار تھے ان کے رافیل یا رفال طیاروں کا شکار کرنے کے لیے۔ مودی نے سوچا تھا کہ شاید اندھیری شب میں وہ ایسا کوئی حملہ کرے گا جس کا اسے جواب نہیں ملے گا، لیکن ہمارے جری جوان جن کی نگاہیں ہی سرحدوں پر مرکوز تھیں، وہ قوم اور ملت کی حفاظت کے لیے وہ جواں مردی کے ساتھ سینہ تانے کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان کے طیاروں نے پرواز بھری اڑان بھری، آگے سے ہمارے شاہینوں نے انہیں جھپٹ لیا، اور وہ طیارے جن پر مودی کو بڑا ناز تھا۔ مودی کی تو اب آپ دیکھیں کیسے بینڈ بجنے والی ہے، اس کو یہ قوم جو ہے الٹا کر کے لٹکا دے گی۔ ابھی لندن کی چائے ابھی بھولی نہیں تھی، 2 طیارے مودی نے وہاں تباہ کرائے۔ جب وہاں پر تباہ کرائے تو انہی طیاروں کو بنیاد بنا کر اس نے بے تحاشا پیسہ لگا کر جو ہے اس نے فرانس سے ایک جنگی معاہدہ کیا، اور 35 طیاروں کا ایک فلیٹ اس نے لیا، جو دنیا کے بہترین طیارے تھے، رافیل طیارے یا رفال طیارے تھے۔ انہیں اپنے جنگی جنون کوش میں شامل کیا، اور ان کو اس نے کہا کہ اب ہم پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کریں گے، اور اب ہم پاکستان کو جو ہے مودی نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ صرف 11 گھنٹوں میں جو ہے ہم فتح کر لیں گے۔ لیکن مودی، شاید تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرا واسطہ کن جوانوں سے اور کس ملک سے اور کن جری جوانوں سے پڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ طیارہ کوئی بھی اچھا اور برا ہو، جدید ترین ہو، اس کے اڑانے کے لیے بہادر نوجوان اور پائلٹ ماہر چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ ہندو بنیا، یہ بزدل جن کی پینٹیں، جن کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں، یہ کیا رافیل کو اڑائیں گے جب انہیں اڑانا ہی نہ آتا ہو، جب انہیں اٹیک کا پتہ ہی نہ ہو، جب ان کے ٹارگٹ ہی لاک کر دیے جائیں آگے سے پاکستان کی جانب سے، جب یہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوں، اور جب ان کے بیک اپ پہ چڑھنے والے طیاروں کا نظام جیم کر دیا جائے منٹ 2 منٹ کے لیے، پھر یہ اندھیرے میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اندھے تھے، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور جب ہمارے شاہینوں نے یہاں سے پرواز بھری اور وہاں پر آسمان پر ڈاگ فائٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو رافیل طیارے تھے وہ 5 طیارے جو ہیں زمین بوس کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ان کی بے تحاشا چیک پوسٹوں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ پاکستان نے پہل نہیں کی ہے، لیکن اب پاکستان اس کو انجام پر پہنچائے گا۔ چند منٹوں کے بعد ہی مودی نے جو ہے رونا دھونا شروع کر دیا، اس کی چیخو پکار آنا شروع ہو گئی۔ وہ رافیل طیارے جن پہ بڑا ناز کرتا تھا، انہیں پاکستان کے شاہینوں نے زمین سے اڑتے ہوئے، آسمان پر اڑتے ہوئے زمین بوس کر دیا، پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایل او سی پر ان کی چیک پوسٹیں تباہ کر دی، پھر سری نگر کو نشانہ بنایا گیا۔ مودی کے جو تھے وہ 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ ایکسپیکٹیشن نہیں کر رہا تھا، اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ہماری پاک فوج نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر پہل تم کرو گے تو اختتام ہم کریں گے۔ سارا انڈیا لاک ہے اس وقت، پاکستان کے میزائل کی زد میں ہے۔ فوراً ہی مودی نے رونا شروع کیا اور لگا کر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ یہ اس کی ایک قسم کی شکست تھی، یہ تسلیم کیا اس نے اپنی ہار کو۔ ایک دفعہ وہ پھر ہار گیا، اب قوم جو ہے اس کو جوتیوں میں رکھے گی۔ اس نے قوم کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ مودی نے ملک کو دفاع کے طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ دراصل چونکہ یہ ایک شاطر دہشت گرد ہے، اور یہ بچر آف گجرات ہے، یہ مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ شودروں کا قاتل ہے، یہ دلتوں کا قاتل ہے، یہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے جہاں پر اعلیٰ ذات کے ہندو ہوں گے، ان کا سارا معاملات چلے گا۔ یہ دعویٰ کرتا ہے، مودی کہتا ہے کہ اس نے پاکستان کا F-16 مار گرایا، لیکن ہماری پاک افواج کے مطابق پاکستان نے F-16 کو اڑایا ہی نہیں ہے۔
पाकिस्तान ने F-16 की घन गरज अभी दुश्मन के कानों में डाली ही नहीं है, इनके कान फट जाते, इनकी आंखें अंधी हो जाती। अगर F-16 उड़ते तो इनकी तबाही ही तबाही थे। अगर जो आमदा खबरें हैं वो कहते हैं कि इंडिया ने इतने जहाज जो हैं सरहदों पर लगा दिए हैं, इतने मिसाइल लगा दिए हैं, तो हम उन अकल के अंधों को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई पाकिस्तान सो नहीं रहा। उनका मेजर आर्या जो दावे करता है, खड़े होकर बातें करता है कि पाकिस्तान को यहाँ घुस के मारेंगे, पाकिस्तान के पास इतने टाइम का असला है, पाकिस्तान के पास इतना बारूद है, और हालत ये है कि कल खुद ही इंडिया के पास जो है टैंकों के लिए गोला बारूद ही नहीं था, उनकी कोई मंसूबा बंदी ही नहीं थी। मेजर आर्या कहाँ गया? कहीं कब्र में उतर गया, कहीं दफन हो गया, कहीं उसकी जुबान गूंगी हो गई, आंखें उसकी अंधी हो गई। वो जो भी ड्रामा चला रहा था वो सारा ड्रामा फ्लॉप हो गया। इवन देन खुद ही अंदरूने भारत से जो है मोदी के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अपोजिशन ने और कांग्रेसमैनों ने कह दिया है कि मोदी अब जो है वो इस्तीफा दे दे। उनके कांग्रेस के सदर ने कह दिया कि सॉरी कि जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो सारा कुछ प्री प्लान था और मोदी को पता था, मगर इसके बावजूद इन्होंने सयाहों को क्यों नहीं बचाया? मोदी वहां पर क्यों नहीं गया? वहां के हालात जो थे सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान पर उसने अटैक करना था। दरअसल 4 सीटों का सवाल है, राजस्थान के इलेक्शन होने हैं और मोदी ये चाहता है कि वो ये जंग करके, ये छेड़ के, ये सरहदों पे जो उसने जो गोलाबारी की है और जो जहाज उड़ाए हैं, इससे अवाम की हमदर्दियां हासिल कर लेगा। लेकिन नहीं, ये जंग उसे उल्टी पड़ गई है। उसके 5 जहाज तबाह हो चुके हैं, उसके ड्रोन जो हैं वो जमीन पर आन पहुंचे हैं, उसकी चेक पोस्टें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तान ने तबाही फेर दी है। पाकिस्तान ने जो टारगेट चौक किए थे उनको उसने सही तरह और सही अंदाजों से निशाना बनाया। इंडिया अभी पूरे पाकिस्तान के जो है वो टारगेट पे है। हमारे जो मिसाइल हैं वो बिल्कुल फिट है और उन्हें टारगेट दे दिए गए हैं। भारत जैसे जैसे मामलात करता है, पाक फौज के जरी जवान उसी मंसूबा बंदी के साथ उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि भारत के खाम ख्याली में भी नहीं था। भारत ये सोच रहा था कि शायद पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क है, हम बड़े मुल्क हैं, लेकिन नहीं, हमारे जवान वो जवान हैं जिनको दुनिया जो है वो सलूट करती है, वो सलाम करती है, उनकी बहादुरी की मिसालें दी जाती है। पाक फौज जब भी उतरी, शायद भारत भूल गया है MM आलम को, जिनका रिकॉर्ड कायम है कि उन्होंने चंद मिनटों में इतने ज्यादा तैयारे जो हैं वो मार गिराए थे। अब तो जमाना मोदी दहशतगर्द, ये सुन ले कि अब तो जमाना जो है बहुत आगे निकल चुका है। तू कहाँ बैठा हुआ है? तू कहाँ पर है? तू एक चाय बेचने वाला, तू एक दहशतगर्द, तू अखंड भारत बनाने वाला, तू हिंदुओं का मुखालिफ, तू हर नस्ल का मुखालिफ, तू जमहूरियत के नाम पर एक कलंक टीका है। तूने भारत को डुबो दिया है, तूने भारत की मईशत को तबाह कर दिया है। तू पानी क्या पाकिस्तान का एक कतरा भी नहीं रोक सकता। तूने देखा जब कुदरत जोश में आती है तो कैसे तेरा बगलियार डैम का जो है दरवाजे वो टूटे और स्पिलवे टूटे और पाकिस्तान तक अल्लाह ताला ने पानी पहुंचाया। तू अगले 20 से 25 साल भी लगा रहे, तू पाकिस्तान का जो है पानी नहीं रोक सकता। ये तेरी एक गीदड़ भपकी है। सिंतास मुआहदा हो या ना हो, लेकिन एक ऊपर नीले छत वाले का भी एक मुआहदा होता है और वो कभी भी अपने महबूब की उम्मा को इस प्यासा नहीं मरने देगा। ये यहूद हनूद की जो है खाम ख्याली है। गो के इस वक्त इंडिया के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन पाकिस्तान के भी ताल्लुकात इतने बुरे नहीं हैं। और फिर हमें हमें अपने खुदा और उसके रसूल पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा होता है तो मुसलमान कभी भी नहीं चूकता, ना ठहरता है, ना कमर दिखाता है, ना पीछे मुड़ता है। मोदी, याद कर, तू जाहिल आदमी है, ना तुझे पढ़ना लिखना आता है, ना तुझे तारीख का पता है। जब भी तू तकरीर करता है तो तारीख के जो है उलट पुलट और आह कर देता है। बैनुल अक़वामी बरादरी में जब मिलने जाता है तो तेरा मजाक बनाया जाता है। तुझे कोई एडिकेट्स ही नहीं आता है, तुझे पता ही नहीं है कि बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर किस तरह बिहेव किया जाता है। सिर्फ तू एक दहशतगर्द है, तू एक तबाहकार है। तू चाहता है कि बस बम ब्लास्ट करूं और मुल्कों को इंगेज रखूं, अपने मुल्क को भी तबाह करूं और इर्द गिर्द सरहदों को भी तबाह करूं। लेकिन पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। तू ना पहलगाम के सबूत दे सका,
ना इससे पहले जो तूने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, ना उनके सबूत दे सका। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा सबूतों के साथ बात की है और उसने बैनुल अक़वामी बिरादरी को बताया है। अपने ही तेरे मुल्क के तज्जियाकार, तेरा मीडिया, तेरे अखबार, तेरे टीवी ये कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर सफारती जंग जो है वो मोदी हार चुका है, वो अपना नुक्ता नज़र बयान नहीं कर सका है, जबकि पाकिस्तान जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू करता है। अगर उसने तैयारे मार गिराए हैं तो पूरी दुनिया जानती है कि तैयारे तेरे मोदी तबाह हुए हैं। राफेल जो है तूने तबाह कराए हैं, तूने फ्रांस की कमर में भी छुरा घोंप दिया है। अब वो तैयारे उससे कौन, दुनिया में कोई नहीं लेगा। तेरे बुज़दिल पायलट, ना जिन्हें उड़ाना आता है, ना जिन्हें टारगेट अचीव करने आते हैं, और ना ही जहाज को बचाना आता है, और ना ही उन्हें डॉग फाइटिंग का तरीका आता है। ये बुज़दिल बनिए हैं, सिर्फ जहाज में उड़ते हैं, बैठते हैं, देखते हैं और दुम दबा कर निकल जाते हैं। जब शाहीनों की घन गरज सामने से आई और शाहीन झपटे तो उसी वक्त राफेल तैयारे और इंडिया के जहाज़ों ने दुम दबा कर यहाँ से भागने की कोशिश की। लेकिन शाहीन जब झपटते हैं तो वो फिर ऐसे नहीं छोड़ते जब तक वो अपने शिकार को शिकार ना बना लें। और उन्होंने फिर ना लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की, ना वो भारत की सरहद में गए, लेकिन उन्हें दुश्मन को, जहाज़ों को मार गिराया। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, यहाँ पर टेक्निक से जो है जंग की जाती है। पाकिस्तान मोदी मनहूस, जो जमहूरियत के मुंह पर दाग है, कलंक का दाग है, एक धब्बा है, तुझसे पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कहीं भी आगे है। अब वो चीखता है कि पाकिस्तान के पास ऐसा टैक्टिकल एटम बम है जो 10 किलोमीटर के एरिया को तबाह करते हैं। मोदी तू खातिर जमा रख, हमारे पास एटम बम है, हम इस्लामी जमहूरिया के वाहिद मुल्क हैं। लेकिन तेरी तरह बेवकूफ, मऊफ, दहशतगर्द नहीं है कि जिनके मुंह को इंसानों का खून लगा हो। हमें बहुत ज्यादा तंग ना करना। वो मेंबरान असम्बली से ने कहा था कि हमसे पंगा ना लेना, लेकिन हम बहुत खतरनाक साबित होंगे। अब तूने पंगा लिया है, इसका तुझे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सफेद झंडे लहरा, ये जो मर्जी कर, पाकिस्तान अपनी शुहदा के एक एक खून का, एक एक जान का तुझसे बदला लेगा। अब तू दुनिया भर की मिन्नतें कर रहा है, तू सऊदी अरब राब्ते कर रहा है, तू मुत्तहिदा अरब इमारात राब्ते कर रहा है, तू अमेरिका यूरोप राब्ते कर रहा है कि किसी तरह जो है इसको बंद कराया जाए। तूने सिर्फ ये इलेक्शन का एक अखंड ड्रामा मचाया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने तुझे ऐसा बेहतरीन सबक सिखाया है कि तेरी नस्लें याद रखेंगी। तुझे छठी का दूध याद दिला दिया है। वो 36 तैयारों का फ्लीट जो है वो तेरा नाकाम तरीन जंगी दस्ता है। नेवी ने भी तुझे आन लिया है, बहरिया ने भी तुझे आन लिया है, पाकिस्तान की फिजाइया ने भी तुझे आन लिया है, और हमारी बर्री फौज तो बादशाह है जमीनों की, जंगलों की, पहाड़ों की। वो तो तुझे कहीं भी सुख का सांस नहीं लेने देंगे। तेरा मीडिया ही तेरे खिलाफ है, तेरे अखबार ही तेरे खिलाफ हैं, तेरे तजिया निगार ही तेरे खिलाफ हैं, तेरी पार्टी के लोग ही तेरे खिलाफ हैं, क्योंकि तू वन मैन शो चाहता है। और आज के बाद शायद अब तेरी हुकूमत का ये खात्मा है और अब तेरा चिराग गुल हो जाएगा, और फिर तू देखना तेरे कट्टे छट्टे खुलेंगे, तेरी अवाम किस तरह तेरी जिलालत करेगी और तू किस तरह कैदो बंद में जाएगा। फिर तेरा ये मनहूस बदबूदार चेहरा जो है, घिनौना चेहरा जिस पर मक्खियां भिनक रही होंगी, वो अपनी तेरी अवाम के सामने आएगा कि किस तरह तूने इंडिया के मुल्क और कौम के पैसे को बर्बाद किया, तबाह किया, और मुल्क की मईशत को किस तरह तूने बर्बाद किया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।